So I invite Professor Manish Ji to please present here his paper, his views on the today's topic. He's a teacher of history. He is a teacher of history, Magadh University. Hello. You are welcome, sir. Thanks. Thank you, Honorable Chairman, Chairperson, sir, Professor Sushim Dubey, Nalanda Mahavihar, Most Honorable Chairperson of BTMC, Madam Shweta Maharathi ji, the coordinator of this seminar, Professor Kusum Kumari ji, former Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor, Magadh Vishwavadhyaya Magadh University and Munger University, esteemed speakers, delegates, scholars and dear students, मेरे लिए बहुत प्रिविलेज का विषय है to be given an opportunity to speak before you on such a topic. The topic, as we all know, is borders upon Buddhism and Make in India. It is a most relevant, contemporary and a multidisciplinary theme which presents a synthesis of religion, culture, economy and heritage. As we all know that the theme of Make in India, as envisioned by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji, is creating economic sustainability across the various economic activities and self-reliance and enrichment of within the communities. यानी कि जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसके माध्यम से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने की बात की गई है और हम लोग आज यहाँ पे द थीम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वो थीम ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस एंड व्हाट गाइडलाइंस डज बुद्धिस्ट एथिक्स ऑफर अस. और जो अभी सवेरे से बात हो रही है दैट वी आर सो मेनी esteemed scholars before me, they all have quoted from the Buddhist scriptures. We had Anandji also, who was trying to create a synergy and synthesis between self-reliance as we have to practice it today. तो इन्हीं सब विषयों पे बहुत ही समकालीन टॉपिक है and I must thank the whole team for selecting such a topic. तो here what I am going to speak, जो मेरा लेक्चर है, the theme of my lecture, it revolves around the concept of Make in India, self-reliance, with special reference to Bodh Gaya. I will be talking something about Bodh Gaya, the land where Buddha got enlightenment, जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बन गए. तो 2500 साल पहले एक राजकुमार भटकता हुआ यहाँ आया and when he came here, so he found the surroundings very serene. So Madhyam Nikaya में, if I can quote from the Madhyam Nikaya, these lines which talk about the arrival of Buddha at Bodh Gaya, I found a delightful piece of land, a wonderful fort, a gentle river flowing by, and a village community close by. So this is how Madhyam Nikaya describes the arrival of Buddha at Bodh Gaya. Now once Siddhartha becomes Buddha, this Mahabodhi Mahavihar comes into existence. So as we have been talking about, ये जो आपका महाबोधि विहार है या जो भी मोनास्ट्रीज बने, आज तो पूरा बोध गया, it has become a Buddha land. लेकिन let us go back to 2005 years. Later on, Ashoka comes here, monasteries are created, pilgrims, tourists, they are coming to Bodh Gaya. तो ये सब कुछ आइसोलेशन में नहीं था. They were interacting with the community. यहाँ पे एक इकोसिस्टम था. There was an economic ecosystem. There was a social ecosystem. ये इकोसिस्टम में there were kings,
monks, travelers, pilgrims and the common villagers. जो लोग यहाँ रहते थे और जो अभी तक रहते आए हैं, वो लोग जो बहुत सारे लोग शायद उनके वंशज हैं। कई मेरे रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पर हैं, जो मुचलिन सरोवर में भी मिस्टर रामाश्रय हैं, वो स्टोरेज बना के सेल्फ रिलायंस क्रिएट कर रहे हैं, शायद बिहार का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। तो कैसे इंटरैक्ट करते थे ये लोग, और इस इंटरैक्शन से क्या सेल्फ रिलायंस का मैसेजेस हमारे सामने आता है। तो देखिए, मैंने आई हैव बीन born and brought up at Gaya and teaching history here for the 29 years. तो बोध गया has been a part of my bringing up. मेरे फादर who used to be a professor here sometimes, हम लोग जब बच्चे थे तो he used to bring us to बोध गया for a picnic. तो वो मेमोरीज के साथ ग्रो अप हुआ और एक बड़ा एक्साइटमेंट रहता था जब मोस्ट ऑनरेबल दलाई लामा जब आते थे यहाँ, तो एक एक्साइटमेंट रहता था। एक यू नो जिस समय आते थे तो बारिश का समय हो जाता था, जाड़ा का समय रहता था, तो एक मान्यता हो गई थी कि व्हेनेवर दलाई लामा कम्स ही ब्रिंग्स रेन्स एंड समटाइम्स यू नो द रेन्स यूज्ड टू कम। तो ये संयोग था एंड समटाइम्स दे डिडंट कम, लेकिन ज़्यादा समय में वो रेन आता था। तो दिस वॉज द एक्साइटमेंट विच वी ग्रू अप। तो आज बोध गया क्या है? बोध गया टुडे इज अ बसलिंग टाउन with markets, bazaars, multicultural जगह हो गया है। In 2003 it was declared as a World Heritage Site. David Geary in his book Reinventing Reimagining Bodh Gaya, he says कि now Bodh Gaya has become like a global bazaar where social, जल्दी कितना समय देगा? 5 मिनट दीजिए, इतना जल्दी नहीं हुआ होगा सर, ये भी संभव है, बात तो कही नहीं पाए। तो ठीक है, हमारे चेयरपर्सन साहब की तरफ से निर्देश है। तो हम सेल्फ रिलायंस वाली बात पर आते हैं। तो बोध गया एक ग्लोबल बाजार हो गया है अकॉर्डिंग टू डेविड गेरी। वहाँ एवरी डे सोशल एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर बीइंग नेगोशिएटेड एंड दे आर ट्रांजैक्टेड। अब हम सवाल ये है कि बोध गया हैज डेवलप्ड, लेकिन दिस डेवलपमेंट हैज बीन फॉर whom? If Bodh Gaya has become globalized, there have been inherent contradictions and tensions within. Now there are different stakeholders here. For example, on the one side you have got the monasteries, on the other side you have got the hoteliers. They are both competing for the accommodation space here. Then you have the local population. आपके यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है उसका विजन कुछ और है बोध गया के लिए। उसको सारा होल ईयर अराउंड उसको लाइवलीहुड चाहिए, और यहाँ जो मोनास्ट्रीज हैं या जो गवर्नमेंट का जो विजन है, दैट विजन इज टू कन्वर्ट बोध गया इनटू अ टूरिस्ट लैंड। जो हमारा सिटी डेवलपमेंट प्लान 2011 है, जिसमें कि विजन 2031 बोध गया है, उसमें है कि बोध गया को एक कल्चरल हब बनाना है, एक एजुकेशनल हब बनाना है। लेकिन वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। जब लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो यह जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, क्या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स जो है, दैट शोज अस अ वे आउट। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स 2007 ईस्वी में शूमैकर, रिचर्ड लेफोर्ट, लाजलो सोलाई इत्यादि लोगों ने इसको डेवलप किया। हंगरी में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड बेस्ड ऑन दोज थीम्स ये बात की गई कि जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स है, इट टॉक्स अबाउट सेल्फ रिलायंस of the communities. It talks about economic sustainability. Now, Make in India का भी economic sustainability model है. What is economic sustainability? Economic sustainability is overall development. Economic sustainability is creating more happiness. भूटान के भंते आए हुए हैं। In Bhutan, the gross national happiness index is measured, and we measure in modern economics the gross national product or the GDP. So कैसे सिंथेसाइज करना चाहिए? आई विल गिव यू इन वेरी शॉर्ट सम केस स्टडीज। आई एम कन्वीनर ऑफ गया चैप्टर ऑफ इंटैक्ट, भारतीय सांस्कृतिक निधि। हम लोग कई काम कर रहे हैं बोध गया में भी विरासत के लिए। देखिए, बोध गया में जहाँ बात आ रही है कि सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए, तो आई विल टॉक अबाउट द लोकल क्राफ्ट्स। जैसे हम लोगों ने पॉटर्स के साथ काम किया। ये आपका गया और जो बोध गया है, दे बोथ आर रिलीजियस सिटीज।
जहाँ भी नदी होगा और सनातन से कनेक्टेड जो भी फोल्ड होगा वहाँ मिट्टी के सामान बिकेंगे, दिए बिकेंगे, घड़ा बिकेगा, चुक्का बिकेगा। तो यहाँ बहुत सारे पॉटर कम्युनिटीज़ हैं ऑल अक्रॉस द रिवर साइड, विष्णुपद से लेके आपको यहाँ बकरौर तक। हमने 2023 में DPS स्कूल में हमारे कार्यक्रम होता है एक इंडिजिनियस क्राफ्टमैन को सपोर्ट करने के लिए। हम एक पॉटर को ले गए, यहीं से बकरौर के एरिया का था, और उसने चार्ट पे बहुत तरह के करके बच्चों को बताया। द पर्पस वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, और उसमें एक सेंसिटिविटी करने के लिए। तो पॉटरी को इंडिजनाइज करने की आवश्यकता है। तो ये क्राफ्ट का क्या वैल्यू है, देखिए आप दिया आज के दिन में देख रहे हैं हम लोग कि कुल्हड़ से भी चाय पीने का क्रम बढ़ रहा है, लेकिन बेसिकली रॉ मटेरियल से लेके इनोवेटिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट इनको चाहिए। जैसे अभी हाल में मैं पेपर में पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में एक मिट्टी बोर्ड बना हुआ, माटी बोर्ड है। तो यू हैव टू एम्पावर द इंडिजिनस कम्युनिटीज, तभी आप इस मेक इन इंडिया की बात सार्थक हो सकेगी। पॉटर के बाद अगर हम इंडिजिनस क्राफ्ट की बात करें, गया में बोध गया में बात करें, यस ठीक है, आई एम कंक्लूडिंग। इट इज आई डोंट थिंक ये 5 मिनट्स भी हुआ होगा। जस्ट गिव मी, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। आई गॉट योर मैसेज वेरी क्लियरली, but let me say what exactly I want to say. I am talking about something which is very relevant, isn't it? Another craft जो है वो वुड क्राफ्ट है और स्टोन स्कल्पचर क्राफ्ट है। यहाँ एक सुबोध रविदास नाम का एक स्कल्पटर है, अभूतपूर्व लकड़ी की मूर्तियाँ बनाता है। हम लोग DAV स्कूल ले गए वहाँ, और वहाँ जाकर उसने एक डेमो दिया, काफ़ी बिकता भी है, लेकिन इसको एक सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से मस्तीपुरा में देश का सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ लोकल कम्युनिटी, विमेन कम्युनिटी को टीचिंग का कि कैसे बुद्ध के इमेजेस को बनाना है, आप उसमें हैंड बैग्स में बनाइए, आप पर्सेज में बनाइए, तो ये सब किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज़ में जाते जाते, क्योंकि कई बार मुझे कहा गया है कि मंच खाली करिए, जनता आती है, तो मैं जाते जाते एक और उदाहरण दूंगा जिनके साथ मैं लगातार कार्य करता हूँ। जो टिबेटन्स इन एग्जाइल हैं, टिबेटन्स इन एग्जाइल सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी और मेक इन इंडिया का भूतपूर्व उदाहरण है। निर्वसन में है, दे आर इन एग्जाइल इन इंडिया। हैव यू एवर सीन एनी टिबेटन बेगिंग? दे आर ऑल क्रिएटिंग अ लाइवलीहुड हियर इन एग्जाइल हियर। थैंक यू सो मच। टाइम इज शॉर्ट, आई हैव जस्ट गिवन यू लीड्स, बट वन थिंग इज श्योर कि ये जो मेक इन इंडिया है, इट हैज़ टू कम आउट ऑफ, आपके स्क्रिप्चर से बाहर आना है। दे हैव टू बी अप्लाइड टेकिंग द हेल्प ऑफ द बुद्धिस्ट एथिक्स। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू चेयरपर्सन सर फॉर बियरिंग विथ मी। Thank you so much, Professor Manish ji, for putting forward your insightful thoughts and provoking. बहुत अच्छे विभिन्न localized to generalized to the globalized such kind of views have been presented, and I now request next Professor Sudhanshu Shekhar ji to present his paper and views. And now we are left with, as for the time being given to us, please maintain the time. आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह में मैं सबसे पहले महात्मा बुद्ध को नमन करता हूं, और साथ ही साथ उनकी देशनाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे आप सभी संतों को भी नमन करता हूं। और आप सभी उनकी देशनाओं को केवल सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यवहार में भी उतार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने हमारे जैसे लोगों को बोलना शोभा नहीं देता है, जिन्होंने बुद्ध को सिर्फ किताबों में पढ़कर थोड़ा बहुत जाना है। फिर भी क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ, इस आशा में विश्वास के साथ कि आप तो बोधिसत्व के अनुयायी हैं, गलतियों को क्षमा करेंगे और हमारी मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आप सबों को मेरा प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित मैं अपनी दोनों मातृशक्ति प्रोफेसर कुसुम कुमारी जी और महारथी जी को भी प्रणाम करता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्रोफेसर सुशील दुबे सर, एवं आप सभी जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उन सबों को प्रणाम करता हूं, और जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं उन सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबों ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, और आप सभी
जानते हैं। मैं सिर्फ एक दो बातों का फिर से आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। भारत ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का देश है और यहाँ पर हजारों संत हुए, हजारों उपदेशक हुए, हजारों महात्मा हुए, धर्म के प्रणेता हुए, लेकिन उन सबों में बुद्ध अद्भुत हैं, अनूठे हैं और बुद्ध के जैसा कोई नहीं है। और यह सिर्फ भारत के लिए सही नहीं है, बल्कि दुनिया के स्तर पर भी यह बात लागू होती है। और दुनिया के तमाम विचारकों ने, धर्म गुरुओं ने जो मुक्ति का रास्ता दिखाया, उन सबों को मिलाकर दुनिया के जितने लोग आत्मनिर्भर बने होंगे या जितने लोग मुक्त हुए होंगे, अकेले बुद्ध के मार्ग पर चलकर उनसे हजारों गुणे लोगों ने मुक्ति प्राप्त किया। यह एक सच्चाई है। और इससे बड़ी सच्चाई यह है कि एकमात्र ऐसे विचारक हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं, महागुरु हैं, जिन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। एकमात्र ऐसे मुक्तिदाता हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुक्तिदाता हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तो तुम्हारा साथी हूं, मैं तो सिर्फ मार्ग दिखाने वाला हूं। ये मेरा देखो, ये अष्टांग मार्ग है, इस पर चलकर मैं मुक्त हुआ हूं। तुम भी चलोगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे, कोई दूसरा चलेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो किस जाति में जन्म लिया है, किस जगह पे जन्म लिया है, किस योनि में जन्म लिया है और किस काल में जन्म लिया है। तो अगर आज से 2500 वर्ष पहले कोई उस रास्ते पर चल के मुक्त हुआ था, तो आज भी हम मुक्त हो सकते हैं। बस जरूरत है कि उसको विश्वास करके उसे अपने जीवन में उतारने की। और उनके दर्शन में आत्मनिर्भरता के बारे में कितनी बातें कही गई हैं, आप लोगों ने सुबह से ही चर्चा की है उस पर, और बहुत सारी किताबों में आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ उनकी एक बात को याद करना चाहता हूँ जो उन्होंने ये मुक्ति के संबंध में कहा। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता या शैक्षणिक आत्मनिर्भरता या तमाम भौतिक आत्मनिर्भरता है, वो तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता तो ये हम मुक्त हो गए तो सबसे महामुक्त हो गए, तो हम आत्मनिर्भर हो गए, स्वतंत्र हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, सभी सारे दुखों से मुक्त हो गए। और इस रास्ते के लिए भी उन्होंने अपने साथियों को, अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनाया। कहा कि तुम मेरी बातों को भी मत मानो, किसी शास्त्र की बातों को भी मत मानो, तुम अपने दीपक स्वयं बनो। मुझे लगता है कि पूरे विश्व वाङ्मय में आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा संदेश कोई नहीं है। अब तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना रास्ता स्वयं तलाशो। यह सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता का उनका संदेश है। और इस लाइट में जब हम इस विषय पर आज चर्चा करते हैं, मेक इन इंडिया, तो मेरे मन में तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि ये इंडिया क्या है। इंडिया तो पहले होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो अगर इंडिया को बनाना है तो इंडिया की भूमि पर खड़ा होकर आपको बनाना पड़ेगा, तो इंडिया नहीं होगा, वो भारत होगा। तो पहले तो मेक इन भारत, और वो भारत जो बनेगा तो फिर वो भारत की दृष्टि से बनेगा। और भारत में बहुत सारी दृष्टियां हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि सबसे सम्यक दृष्टि है, सबसे व्यवहारिक दृष्टि है, सबसे वैज्ञानिक दृष्टि है। तो भारत की भूमि पर भी रहकर बुद्ध के देशनाओं के आधार पर जो बनेगा तो भारत बनेगा। मेक इन इंडिया अगर वो पश्चिम का विचार रहेगा, अगर वो, तो फिर नहीं बनेगा। पहला तो ये, पहले तो इंडिया वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, मेक इन इंडिया मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहेंगे इंडिया में आके बनाओ या भारत में आके बनाओ। तो क्या बनाओ? भारत में आके मोबाइल बनाओ, भारत में आके परमाणु बम बनाओ, भारत में आके क्या बनाओ? भारत में आकर के बड़े बड़े कारखाने लगाने से वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2-4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 2-4 लोग और करोड़पतियों की संख्या बढ़ जाएगी। ये बुद्ध की देशना नहीं है। भारत में पहले बनाओ, तो ये पहले उस पर हम लोग बात करेंगे। तो भारत में बनाओ तो क्या बनाओ? पहले तो भारत के लोगों को बनाओ। बुद्ध ने लोगों को बनाया, बुद्ध ने मानव निर्माण का संदेश दिया है, मोबाइल निर्माण और परमाणु बम निर्माण का संदेश नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो भारत में क्या बनाओ, ये हमको सोचना पड़ेगा। मनुष्य को बनाना है, और मनुष्य बनाने की देशना बुद्ध के दर्शन में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया नहीं, भारत में बनाओ नहीं, भारत को बनाओ। भारत को कैसे बनाना है, भारत का पुनर्निर्माण कैसे बनाना है, करना है, इसे हमको सोचना पड़ेगा। और भारत का पुनर्निर्माण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है,
हम तो बहुत छोटे स्टूडेंट हैं दर्शन शास्त्र के, बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों ने, विचारकों ने कहा है कि अगर भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है तो बुद्ध के दर्शन के आधार पर ही हो सकता है। अगर भारत कभी विश्व गुरु था तो बुद्ध के कारण ही था। भारत कभी अगर सोने की चिड़िया था तो बुद्ध के कारण ही था। आगे भी अगर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो भी बुद्ध के कारण ही होगा, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा तो भी बुद्ध के कारण ही होगा। तो हम सबों की यह जिम्मेवारी अब बनती है कि अगर यह इस बात सत्य है, अगर हम इस बात में विश्वास करते हैं तो हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम उस ओर चलें। क्योंकि बुद्ध का दर्शन व्यवहारिक दर्शन है। इन्होंने कोई वो दर्शन नहीं दिया कि इस पर हम चर्चा करें, मंथन करें, विमर्श करें, वो इनका दर्शन नहीं है। इनका दर्शन है जीवन में हम कैसे उतारें। तो अगर आज का यह सेमिनार हमको थोड़ा सा भी बुद्ध के करीब ले जाएगा तो निश्चित रूप से यह हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी और जो विकसित भारत के निर्माण का जो सपना है वह सपना भी सही मायने में साकार हो सकेगा। नहीं तो अगर हम भारत को विकसित उसी अर्थों में करना चाहते हैं, सिर्फ अर्थव्यवस्था में 5वें से तीसरे पर चले जाएं कि तीसरे से पहले पर चले जाएं, तो उससे ना तो हमारा भला होने वाला है, ना तो बौद्ध दर्शन की दिशा में हमारी समझ बढ़ने वाली है। अगर हमको भारत को विकसित बनाना है, भारत का निर्माण करना है, तो भारत की जो मूल चेतना है, जो उसके स्तर को, भौतिक विकास को नहीं बल्कि भारत के आध्यात्मिक विकास को, बुद्ध की जो देशना है उसको आगे बढ़ाकर हमको खुद भी उसको अमल करना होगा और दुनिया को भी वही संदेश देना होगा। भारत के कितने लोग विदेशों में जाकर कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या टेक्नोक्रेट बन गए, कितने कंपनियों के सीईओ बन गए। इससे भारत का कोई, मुझे लगता है कि वो बड़ा नाम नहीं होता है। इससे भारत का बड़ा नाम होगा कि भारत में बुद्ध जैसे कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों ने बुद्ध की देशनाओं को अपने जीवन में उतारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबों को शक्ति दें कि हम आपके मार्ग पर चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुधांशु जी का। आपने भगवान बुद्ध के रास्ते पर हम सभी को चलने के लिए आमंत्रित, उत्साहित, प्रेरित और ऊर्जान्वित किया। मैं शीघ्रता के लिए समय का बंधन है, मैं आमंत्रित करूंगा Dr. Pransu Shamdarshi to present his views. Dr. Pransu ji is from Nalanda University and Dr. Sudhanshu ji, I missed to say he was also the Deputy Registrar at PN Manda University and also he is keen interest in journalism and doing lot of YouTube activities. So please go on, Pransu ji. Thank you, Chairman Professor Dubey. I'm grateful to Professor Kusum Kumari ji and Chairman PTMC. There is a time limitation, so I'll directly come to the topic. I'll begin with the invocatory verse from the Dhammapada Pali. That's the Udan of Bhagavan Buddha. When he got enlightened at the Vajrasana, he uttered these verses. Anik jati samsaram sandha visam manibisam kahakarak gave sundo dukha jati punah punah kahakarak dithosi purge hamna kahasi sabba sute phasuka bhagga gah kutam sankshetam asankhar visankharatam chittam tanhanam bhayamajjaga. So this verse was uttered at the Vajrasana, the place where Buddha got enlightened beneath the Bodhi tree. Or I come from Nalanda University, but I also get to know that if you read the ancient scriptures written during Buddha Ghosh and his contemporaries, Bodh Gaya used to be one of the biggest center of learning, known as the Vajrasana, and the Pali was the medium where these things got developed. We heard in the previous session that when Buddha Ghosh and Buddha, when they met on the voyage of the Sri Lanka, they talk about this decline of Pali tradition. So I was also asked to speak a little bit of the Pali. Pali has worked as a Dhamma Setu, a bridge to connect India with the rest of the Asia, especially South Asia. एक तरह का सांस्कृतिक समन्वय का कार्य किया है पाली ने अपने भाषा के माध्यम से, और धीरे धीरे ये पाली सिंहली श्रीलंका में जाता है, म्यांमार में जाता है। वहाँ के 12वीं शताब्दी में वहाँ के भिक्षु they are developing a very precise Pali grammar based
and taking inspiration from Sanskrit grammar, and this brings a kind of a Sanskritic samriddhi across the Asian region, and also makes the Southeast Asia self-reliant in terms of culture, in terms of language. So we are grateful to our Honorable Prime Minister for giving the recognition for the Pali as a classical language. Having spoken about the Pali as a classical language, I'll come to the topic on the self-reliance. It reminds me once His Holiness Dalai Lama was invited to our university, and in his inaugural address, there was a quote from two great scientists of this time was given. One is Albert Einstein, another Werner Heisenberg, both Nobel laureate. ये दोनों आपस में पत्राचार करते हैं, and where Albert Einstein saying, in the West we have developed a large and beautiful ship. This ship has got all the comforts in it, but one thing is missing: it has no compass and it does not know where to go. In the East, people have discovered this compass. So why not this compass is put into the ship so that both can realize their purpose? ये कहना ये चाहते हैं कि पश्चिम सभ्यता ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया है, सारी सुख सुविधाओं से ये जहाज लैस है, पर इसमें एक चीज की कमी है, इसमें दिशा दिखाने वाला यंत्र नहीं है। और ये दिशा दिखाने का कार्य हम पूर्व के क्षेत्र के लोगों ने किया है, बुद्ध ने किया है, महावीर ने किया है। और जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो जैसा हमारे प्रीवियस स्पीकर ऑल्सो हाईलाइटेड कि हमारा जो कोर कॉम्पिटेंस है दैट इज इन द इनर डोमेन, जो अंतर्दृष्टि की खोज है, जो आत्म की खोज है, वो उसमें हमारी जो समृद्धि है वो मायने रखती है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के शब्द को हम गौरव करें तो वो कहते हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो अगर भारत की जो ये सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, उस पर संकट आता है तो क्या हो सकता है? इसके बारे में स्वामी विवेकानंद की एक वचन को मैं उद्धृत करूंगा। वो कहते हैं, क्या भारत समाप्त हो जाएगा? यदि हाँ, तो संसार से संपूर्ण आध्यात्मिकता विलुप्त हो जाएगी, संपूर्ण नैतिकताओं का अवसान हो जाएगा, धर्म के प्रति मृदु आत्मिक सहानुभूति तिरोहित हो जाएगी, संपूर्ण आदर्शवादिता विलुप्त हो जाएगी, उसके स्थान पर होगा विलासिता का साम्राज्य, नर और नारी इसके पुजारी होंगे, धोखाधड़ी उनकी शक्ति होगी और प्रतिद्वंदिता उनका समारोह होगा। इस अवसर पर आत्मा का बलिदान दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं होगा। यह भारत है पुरातन और भव्य। तो भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है उसको केंद्र में रखते हुए अगर हम मेक इन भारत इसकी तरफ बढ़ते हैं तो शायद ये हमारा स्वप्न साकार होगा, अपनी सही दिशा में जाएगा। हम नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। हमारे जो छात्र हैं वो अमेरिका से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, विभिन्न एशियाई देशों से आते हैं। शायद ही आपको कोई आईआईटी में मिलेगा अमेरिका से जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने आया, मैथमेटिक्स पढ़ने आया। हम जाते हैं अमेरिका, लेकिन योग सीखने, बौद्ध दर्शन की परंपराओं को सीखने के लिए विदेशों से, इन समृद्ध देशों से अनेक छात्र आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने। तो हमें अपनी इस आध्यात्मिक विरासत की तरफ भी हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक बहुत बड़े चिंतक हुए आनंद कुमार स्वामी, उनकी बात को रखते हुए, he says कि in the world has become a global village now and every civilization is contributing to it, and we Indians are coming to contribute with empty hand। वो कहते हैं कि पूरा विश्व समुदाय ग्लोबल विलेज की तरह है और सारी संस्कृति सभ्यताएं इसमें कुछ योगदान दे रही हैं, पर हम भारतीय इसमें योगदान देने में अक्षम हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात करें जिस मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये जो माइक में बोल रहा हूँ, ये सब पश्चिम से आए हैं। और मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं अक्सर सोचता था कि हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे जब इस तरह की जब पश्चिम इतना विकसित हो रहा था।
So he says, Ananda Kumara Swami concludes, it's not that we don't have anything to offer, but we have not focused what we can offer. तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जैसा उद्घाटन सत्र में जैसा बताया गया, या मेक इन भारत की बात करते हैं, तो हमें अपने ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को ध्यान में रख के और उस पर आगे बढ़ना होगा। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भवतु सर्व मंगलम, रक्षन्तु सर्व देवता। थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रांशु जी, आपने विविध विषयों और समृद्धता के साथ विषय को प्रस्तुत किया और समय का भी ध्यान रखा। और अंतिम क्रम में मैं स्वयं डैश से आकर अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले तो कैलाश जी जो पीछे बैठे हैं 3 बजे का समय दिया था वो हो गया, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी। 2 मिनट में बात संपन्न करेंगे। बहुत सम्माननीय इस कार्यक्रम में बीटीएमसी की सेक्रेटरी मैडम डॉक्टर श्वेता महारथी जी, अत्यंत सम्माननीय वेरी ऑनरेबल फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर कुसुम कुमारी जी, एंड all I see the distinguished venerable monks and learned scholar, interested listeners, and my colleagues here who have presented their views on. What I was thinking about, wanting to point out about the topic, that perhaps this word was missing. We have in each and every product at our home made in India. This made has become this make. So what has gone to change? क्या बदल गया? मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये मेक इन इंडिया की जो बात आई और उसके बाद आत्मनिर्भरता की बात आई, इसका हमने बहुत कटुता से, अंदर से, गहराई से अनुभव किया कोविड के समय। जब जैसे गया है बाहर से टूरिस्ट आना बंद हुए, क्या पिंच हमारे पॉकेट और हमारे पेट पर हुए, क्या पिंच हमारे घरों पर हुए, हमारी आत्मनिर्भरता पर हुए। और यहाँ से ये बात बहुत गहराई से उठी कि जब तक स्वयं संतुष्टि और स्वयं निर्भरता की बात कहीं ना कहीं कमी रहती है, कभी भी एडवर्स सिचुएशन में हम या हमारा अस्तित्व जो है उस पर एक संकट खड़ा हो सकता है। दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच इनिशिएटेड दैट वन शुड फुलफिल, एंड दिस मेड इन इंडिया जो एक गाने के रूप में, जो एक ब्रांड के रूप में, मेक इन इंडिया 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। Now in 2000, when the China was only 5% of global production, उसका व्यवसाय में, बिजनेस में, it was his part. Now with 2030, within 30 years, he is going to be the 50% of the production entire world that he is going to give, and people are going to purchase from the China. Where the India is standing, what we can individual and various sections cultural for which India is considered in the world, that is it has given the entire world as the Vishwaguru. More and more and repeatedly these things are coming on. So we have the cultural diversity, cultural richness, and these cultural richness are deep rooted with India's spirituality, India's religious tradition and Dhamma. This Dhamma doesn't mean this Dhamma is dharan karna. What we have the specialness, uniqueness and everything that we can make. ये जो क्षमता की बात है, ये जो कर पाने की बात है, जहाँ से हम चलते हैं, और अंतिम जो लैडर का क्रम है कर पाने में, वह शांति की ओर पहुँचते हैं, जिसको भगवान बुद्ध का संदेश सारी मानवता के लिए, सभी समय के लिए और विश्व को विनाश से बचाने के लिए जो एक संकट खड़ा हो रहा है, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी का नाम देते हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, दिस entire idea of sustainability and coming our national education policy। इन विचारों के साथ जो भारत का 2030 तक भारत सरकार के द्वारा और 2047 तक एक सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस की जो बात की गई, वो हम हर क्षेत्र में, हर जगह से, अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से, अपने घरों के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से कर पाएं। सो फॉर सो फोर जो हमें बुद्धिज्म या भारत में भगवान बुद्ध ने दिया, स्वयं उनका यदि हम जीवन देखें, सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने
किन चीज़ों को लेकर बनाया, कैसे यहाँ पर बोधगया में आकर अपनी तपस्या की, अपना जीवन स्वयं एनलाइटेड हुए और उस नाव को, उस भावना को, उस बात को केवल अपने पास ना रहकर सबके पास पहुँचाया, जिससे आज न केवल भारत बल्कि 30 से अधिक देश जहाँ पर बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म या बुद्ध का शासन या बौद्ध संस्कृति भारत की देन है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का हम इसको आगे बढ़ा पाएं, बौद्ध धर्म के साथ, बौद्ध संस्कृति के साथ, भगवान बुद्ध के विचारों के साथ। सुधांशु जी ने तो बहुत प्रखरता के साथ रखा कि अनूठे व्यक्तित्व के रूप में, एकमात्र भारतीय संत के रूप में, सन्यासी के रूप में, यूनिकनेस के रूप में, जिनको पूरा विश्व मानता है, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमने युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। इन सब चीज़ों के साथ, समय की मर्यादा के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए और वैयक्तिक रूप से एक जिम्मेदारी के साथ एक और अच्छी बात है, आज के बजट में भी बिहार को मखाना बोर्ड का जो है, मैं पढ़ रहा था हाइलाइट्स, मखाने बोर्ड का यहाँ पर स्थापना की जाएगी। ऐसे ही हम अपनी यूनिकनेस को, मनीष जी ने कहा कि जो लोकल फॉर वोकल, इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम एक अच्छे अपने परिवेश को, पर्यावरण को और जीवन को बना पाएं। इन सब मान्यताओं के साथ आज का यह विशेष विषय अत्यंत सार्थक, संदर्भित सबके सामने प्रस्तुत हुआ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।